Good evening and warm welcome to all of you, my dear friends, in the world of the quantum mechanics. Today, I am here with you with a very interesting and very impressive topic: how to find out atomic orbital with the help of a very complicated wave equations. What exactly the wave equation represents, how you can find out orbital based on the wave equations. Without wasting any time, let me get back to the board and let us see what are the complicated equations just given to us. Remember, these equations need not to be memorized because these are very complex equations, and not only one single equation is there. There are hundreds and thousands and millions of such type of equations. Whenever in the examination the question based on the equation is asked, often the equation is provided in the examinations. Only what you need to know, you need to just understand, you need to investigate the equation, you have to understand the different components of the equations. Let me get back and make you understand. I have represented a few horrible equations over here, like your psi 100, psi 200, psi 300, psi 210, psi 211, psi 21 minus 1. For all these wave function equation, I have represented some equations. In this equation, there are few common features. What are the common features? The common feature is this term is a constant term. This term is again here a constant term. Here A naught represent to the Bohr radius. For the hydrogen atom, single electrons species, ये वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है. यहाँ भी आप देख रहे हैं, दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू, दिस इज अगेन कांस्टेंट वैल्यू. ये सारे के सारे जितना मैं या गोले के अंदर डाल रहा हूँ, all these are the constant values. If you look at the last of the expression, at the end of the expression, what I find, there is some exponent term raised to the power minus r over a naught. This term, ये exactly ये टर्म यहाँ भी दिख रही है आपको, यहाँ भी ऑब्जर्व हो रही है, हर जगह ये टर्म ऑब्जर्व हो रही है. ठीक है, एवरीवेयर ही आल्सो ऑब्जर्व e raised to the power minus r over the a naught with some coefficient associated with this. In some equation, we are also finding some kind of the trigonometric functions. Like here, I have represented cos theta. Here, I have mentioned cos theta, sin theta, cos phi, sin theta, sin phi. These are the terms that you have already been explained, that the theta is the polar angle, phi is the azimuthal angle, sin, cos, as usual, you know from your mathematical backgrounds. Okay, now let me explain to you, if these are the mathematical expressions. In all these mathematical expression, please look over here. Accept this expression, what you find in between exponential term and this constant value, there is some kind of the polynomial specified here. Here I find there is no polynomial here. Again a polynomial is here. Again some polynomial specified like this here. And in these three equations, some trigonometric function has also been mentioned. सपोज एग्जामिनेशन में आपके पास इस तरीके का एक वेव इक्वेशन दिया जाता है. आपसे कई चीज़ें पूछी जा सकती हैं इन इक्वेशन के बेस पे. ये पूछा जा सकता है कि ये इक्वेशन किस एटॉमिक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रही है. दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इस इक्वेशन के थ्रू ये बताइए कि कहाँ पर न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पर नोड पाया जा रहा है, या व्हाट इज द प्रेजेंस ऑफ द नोड अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन. अगर नोड मिल रहे हैं तो कितने नोड मिल रहे हैं. नोड में यहाँ बात कर रहा हूँ रेडियल नोड की, क्योंकि हम जो रेडियल पार्ट को यहाँ डील कर रहे हैं.
एंगुलर नोड को निकालने के लिए आपको एंगुलर फंक्शन वाला डाटा यूज़ करना पड़ता है। नॉर्मली एंगुलर वेव फंक्शन पे कभी नोड से रिलेटेड या ग्राफिकल क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। अब अगर आपने नोड फाइंड आउट कर लिया तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नोड न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पे है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इस इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनेगा। ये इक्वेशन के ग्राफ से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जो इन्फॉर्मेशन इस ग्राफ से मिल रही है क्या वो हमारे लिए यूज़फुल है, सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। अगर सिग्निफिकेंट नहीं है तो उसको सिग्निफिकेंट कैसे बनाया जाए। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी के बारे में अगर बात की जाए तो एग्जैक्टली न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या है, वो 3 डायमेंशनल स्पेस कैसा है कि जहां हम इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी की बात कर पाएंगे। ये भी पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पे है। इस तरह के तमाम मैथमेटिकल बेस्ड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। ओके, सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि ये इक्वेशन को देख के ही स्टूडेंट पहले ही बैकफुट पे चला जाता है। इसको समझाने के लिए मैं आपको बहुत ही सिंपल एंड इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ कि आपको इनको डील कैसे करना होता है। इज इट क्लियर? तो जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट मी कम बैक हियर ऑन द बोर्ड। जैसे सपोज आपको ये इक्वेशन दे रखे, मैं किसी एक इक्वेशन को ही यहाँ जो कि ले रहा हूँ। इसके अलावा थोड़ा सा जरा मैं यहाँ जाने से पहले, क्योंकि बोर्ड को थोड़ा साफ करता हूँ, इतनी इंफॉर्मेशन के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे रहा हूँ। कभी कभी होता क्या है कि जो ये साइन थीटा कॉस फाई मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये डाटा कभी कभी ऐसा न लिख के ऐसे फॉर्मेट पे भी लिखा हुआ रहता है, साइन थीटा ई रेज टू द पावर आयोटा फाई, ई रेज टू द पावर आयोटा फाई। इसको आप जो है कि एक्सपेंड कर सकते हैं, एक्सपेंड करके यानी ई रेज टू द पावर आयोटा फाई होता है कॉस थीटा, ये वैल्यू हो जाती है आपकी कॉस फाई आई साइन फाई, ठीक है ना। इसी तरीके से कभी कभी ऐसा डाटा दिया रहता है या इसकी जगह पे ये डाटा भी लिखा हुआ मिल सकता है, उसमें कोई ट्रबल वाली बात नहीं है। अगर आप ये कि प्रीवियसली रेडियल फंक्शन एंड एंगुलर फंक्शन के वीडियोस को देखेंगे, वहाँ मैंने डिटेल में इनके बारे में डिस्क्रिप्शन दे रखा है। तो मैं यहाँ पर यहाँ पर केवल कोई सा भी एक इक्वेशन उठा लेता हूँ। सिंपलेस्ट इक्वेशन मैंने यहाँ उठा दिया, ये इक्वेशंस। पहले तो आप ये समझ लीजिएगा कि इस इक्वेशन को देख के ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए। ये इक्वेशन एग्जैक्टली रिप्रेजेंट क्या करता है, ये इक्वेशन एग्जैक्टली रिप्रेजेंट करता है, ये हो गया साई। यहाँ मैंने लिखा दैट इज एन एल एम, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एज ए फंक्शन ऑफ आर थीटा एंड फाई। इसको वेव फंक्शन बोला जाता है। इट इज अ फंक्शन ऑफ आर थीटा एंड फाई। ये एग्जैक्टली दो पार्ट से कंपोज्ड होता है। इसको लिखने का तरीका ये होता है एन एल आर इंटू, इसे लिखते हैं साई, यहाँ लिख दिया मैंने एल एम और यहाँ लिख दिया थीटा फाई, ठीक है। लिखने के कई सारे जो है कि स्टाइल हैं, आप रेफरेंसेस में देखोगे कई तरीके से इन चीज़ों को जो कि लिखा हुआ जो कि रहता है। मैं सिंपलेस्ट तरीका बता रहा हूँ आपको, यानी वेव फंक्शन जो होता है ये इन नंबर पे डिपेंड करता है और ये आर थीटा फाई पे डिपेंड करता है, जो इस तरीके से लिखा रखा है। ये होता है रेडियल वेव फंक्शंस। इतने पार्ट को बोला जाता है एंगुलर वेव फंक्शंस।
यानी जो टोटल वेव फंक्शन है इलेक्ट्रॉन का वो दो पार्ट से बना होता है। एक होता है रेडियल पार्ट या रेडियल वेव फंक्शन, और दूसरा होता है एंगुलर पार्ट, दैट इज कॉल्ड एंगुलर वेव फंक्शंस। रेडियल वेव फंक्शन ये बताता है कि ऑर्बिटल का साइज क्या है, और एंगुलर वेव फंक्शन बताता है कि ऑर्बिटल का शेप कैसा है। एक साइज बताता है, दूसरा शेप बताता है। साइज मतलब कि न्यूक्लियस से कितना डिस्टेंस तक है, और उस डिस्टेंस पे उसका 3 डायमेंशन में किस तरीके का लुक है, कैसा उसका शेप है, स्फेरिकल है, डंबल है, डबल डंबल है, ट्रिपल डंबल है, कैसा है, ये शेप डिसाइड करता है। एनीवे अब जैसे ये वाला एक्सप्रेशन दे रखा है, ध्यान से देखो इसको, यानी n का वैल्यू दे रखा है, दैट इज योर 1। अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो 1, अगर n 1 होता है तो l का वैल्यू 0, और 0 का मतलब क्या होता है, l 0 का मतलब होता है s ऑर्बिटल। इसका मतलब कि जो ये वेव फंक्शन है, ये वेव फंक्शन एग्जैक्टली 1s एटॉमिक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये 1s एटॉमिक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो s ऑर्बिटल स्फेरिकल क्यों होता है, हर किसी ने याद किया रहता है, क्योंकि 11th में जब स्टूडेंट जाता है उसको यही सिखाया जाता है एस स्फेरिकल है। बट भाई स्फेरिकल क्यों होता है, पी बोले डंबल है, डंबल क्यों होता है, ये फैक्ट भी तो समझाने हैं कि एग्जैक्टली स्फेरिकल क्यों है, डंबल क्यों है, डबल डंबल क्यों है, कारण क्या है इन चीज़ों का। एस स्फेरिकल है, स्क्वायर शेप का क्यों नहीं हो गया, रेक्टेंगुलर शेप का क्यों नहीं हो गया, ट्राइंगल शेप का क्यों नहीं हो गया। ये चीज़ें दे नीड टू बी एक्सप्लेन टू द चाइल्ड कि एग्जैक्टली ऐसा क्यों होता है। तो लेट अस सी हियर, थोड़ा सा यहाँ पे अगर गौर करें, गौर फरमाए आप, तो सिंपल सी बात है कि भाई यहाँ पर आप सीधा एक चीज़ को देख पा रहे हैं कि इस वाले एक्सप्रेशन में मुझे कहीं भी कोई थीटा या फाई टर्म दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है। थीटा और फाई क्या होता है, एंगल। इसका मतलब कि ये एटॉमिक ऑर्बिटल केवल जो है कि इस बात पे डिपेंड कर रहा है, यानी ये जो साई वेव फंक्शन है जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में जानकारी देगा आगे, ये केवल इतनी ही इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इतनी डिस्टेंस पे है। बट वो डिस्टेंस किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे, एक्स वाई प्लेन पे है, वाई जेड प्लेन पे, जेड एक्स प्लेन पे कहाँ है। इसका मतलब अगर मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन यहाँ सिचुएटेड है, तो क्या इलेक्ट्रॉन घूम के इतने एंगल पे या इतने एंगल पे या ऊपर नीचे, क्या इन एंगल पे भी इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी है। ये डिस्टेंस कांस्टेंट है भाई, हाथ मेरा जो है कि यानी एक ही लेंथ का है, अगर मैं इसको रोटेट करूं हॉरिजॉन्टल प्लेन में तो ये डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है। अगर वर्टिकल प्लेन में भी इसको इस तरीके से मूव करूं तब भी क्या है, द लेंथ ऑफ द हैंड इज सेम। कहने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन जितनी डिस्टेंस पे सिचुएटेड है, क्या वो डिस्टेंस, क्या मेरे हाथ की लंबाई इस बात पे डिपेंड कर रही है कि मैं हाथ को हॉरिजॉन्टल में रोटेट कर रहा हूँ या फिर वर्टिकल प्लेन में रोटेट कर रहा हूँ। अरे भाई हाथ की लंबाई तो उतनी ही रहेगी। इसका मतलब सीधा ये निकल के आ गया कि क्योंकि यहाँ थीटा एंड फाई फंक्शन नहीं है, इसका मतलब कि ये जो वेव फंक्शन है ये एंगल पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द एंगल। और अगर ये वेव फंक्शन एंगल पे इंडिपेंडेंट है तो ये इसका जो शेप हो जाएगा वो स्फेरिकल हो जाएगा। स्फेरिकल का मतलब आप स्फीयर का सेंटर इमेजिन करो, जहाँ मर्जी है वहाँ जो है कि उस डायरेक्शन में चले जाओ, आप देखेंगे हर डायरेक्शन में जो है कि आपको सेम रेडियस मिलेगा, हर डायरेक्शन में सेम रेडियस मिलेगा। इसका मतलब कि ये स्फेरिकली सिमेट्रिकल हो जाएगा।
स्फेरिकल हार्मोनिक फंक्शन इसका जो कि आ जाएगा 1s ऑर्बिटल हमेशा स्फेरिकल जो कि हो जाएगा। ये तो बात मैंने इस बिहाफ पर बोल दिया क्योंकि यहाँ थीटा फाई मौजूद नहीं था। अब बात करते हैं, चलो थीटा फाई पे तो इंडिपेंडेंट हो गया। अब क्वेश्चन उठता है कि एस ऑर्बिटल का साइज क्या है, इज इट स्मॉल, मीडियम साइज का है, बिग साइज का है, कितने साइज का है। तो उसी साइज को डिसाइड करने के लिए मुझे रेडियल फंक्शन चाहिए, मुझे ऐसा फंक्शन चाहिए जो आर के अकॉर्डिंग, आर मतलब न्यूक्लियस से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग वेरी करे। तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि न्यूक्लियस से जैसे जैसे आर चेंज करेगा, एज वी विल प्रोसीड अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, वैसे वैसे साई मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का वे फंक्शन कैसे कैसे वेरी कर रहा है। इज इट क्लियर? अब देखो ध्यान से इधर, यहां पर सीधा सा मालूम चल रहा है ये क्वांटिटी तो क्या हो गया भाई, कांस्टेंट हो गया। ये वाली टर्म आप दे रहे हैं एक्सपोनेंट का कोई पावर दे रखा है, इसमें ए नॉट भी कांस्टेंट है, ये आर केवल वेरिएबल टर्म है, ध्यान देना। ये अगर मैं मैथमेटिकली ऐसा लिख दो इसको कि यानी साई 100 का मतलब 1s, ये सारे ये कांस्टेंट हटा दिया, ये कांस्टेंट हटा के डायरेक्टली रिलेटेड लिख दो या कोई आप सिंपल सा कांस्टेंट लिख दो ताकि आपको डर ना लगे कि ये क्या लिखा हुआ है। k इंटू ई रेस टू द पावर माइनस आर ओवर ए नॉट, इस तरीके से मैंने एक वेव फंक्शन इक्वेशन जो की लिख दिया। सीधा देख के ही जो मैथमेटिक्स को लगाओ, मालूम चल रहा है कि ये एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आ गई है। अगर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है तो आप एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है कि प्लॉट करते हैं जिसमें c इंटरसेप्ट हो जाता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। y इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर, आप उसके अकॉर्डिंग उसमें यानी ग्राफ की इंटरप्रिटेशन जो कि देते हैं कि पैराबोला बनेगा, कैसा ग्राफ जो कि आएगा, y डायरेक्टली x है तो हाइपरबोला बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। इस तरीके से आप मैथमेटिक्स के अंदर चीज़ों को एनालाइज करते हैं। ये इक्वेशन को देख के भी मुझे साफ मालूम चल रहा है कि ये एग्जैक्टली आर इसके यहाँ एक्सपोनेंट की पावर में जा रहा है। इसका मतलब ये एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन फॉलो करने वाला है। अगर ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन फॉलो करने वाला है तो देखो मैं ग्राफ कैसे प्लॉट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए यहाँ मैंने लिख दिया y और यहाँ पे मैंने लिख दिया r, मतलब यानी रेडियल वेव फंक्शन की बात कर रहा हूँ। किसके लिए प्लॉट हो रहा है भाई, ये 1s के लिए प्लॉट हो रहा है, 100 के लिए प्लॉट हो रहा है। एज ए फंक्शन ऑफ r लिखो, चाहे आप इसको चाहे r लिख लो, चाहे r अपॉन ए नॉट लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो। आपकी बार जैसे जेई आपकी बार नहीं, लास्ट ईयर जब क्वेश्चन आया था तो वहाँ r अपॉन ए नॉट लिखा हुआ था, ए नॉट वैसे भी कांस्टेंट है, r लिखो चाहे ये लिखो, से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब ध्यान से देखो, जब यहाँ पर होता है न्यूक्लियस, r की वैल्यू 0 का मतलब न्यूक्लियस से आप जो है कि r डिस्टेंस पे आगे चल रहे हैं। अभी मैं क्यों जा रहा है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग इस बात को इंटरप्रिटेशन करने जा रहा हूँ 2D प्लेन में। तो यहाँ ध्यान दिया जाए कि एग्जैक्टली जब r का वैल्यू यहाँ 0 हो जाएगा, इफ द वैल्यू ऑफ r, क्योंकि पावर देखना एक्सपोनेंट की, अरे नेगेटिव पावर है, अगर r 0 हो गया तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए, जल्दी बताओ, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 का मतलब ये, सॉरी, ये वैल्यू अगर r की वैल्यू अगर यहाँ पर 0 हो गया तो ये क्वांटिटी क्या हो गया हमारा 1, और ये एक्सपोनेंट क्योंकि ये एक फ्रैक्शनल क्वांटिटी होगा तो 0 एंड 1 के बीच में वेरी करेगा, ये मैक्सिमम वैल्यू पे आएगा। मैक्सिमम का मतलब कि यानी जब r 0 है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन के मिलने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। ये मैंने मैक्सिमम पे कोई पॉइंट को दिखा दिया। अब जैसे जैसे यहाँ r इंक्रीज करेगा, ये जो साई r है ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा,
बट ये इस एक्सिस को टच नहीं करेगा क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल डिके जो है कि को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ग्राफ कैसे आएगा, ग्राफ आएगा ऐसे तरीके से, इस तरीके से वाई एक्सिस के पैरेलल में लेते चले जाना। इज इट क्लियर? चलो यहाँ तक जे की बात ओके है। एग्जैक्टली जो साई होता है, ये साई है क्या चीज? साई एक्चुअली इलेक्ट्रॉन वेव का एम्पलीट्यूड होता है। 1s में तो कोई दिक्कत नहीं आया, जब आप 2s 3s में देखोगे तो ये वाला ग्राफ यानी यहाँ से नीचे भी जाएगा। नीचे जाने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी, आप जीरो की बात कर रहे हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी जीरो हो ही नहीं सकता है। सॉरी, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकता है। इसलिए अब क्या किया गया, एक और ग्राफ की हम बात करते हैं, यानी साई आर मॉड स्क्वायर एंड आर के बीच में ग्राफ। तो भाई जब इसका स्क्वायर ही कर दिया आपने, तो स्क्वायर का मतलब ये ग्राफ जो भी जाएगा, जैसे इतने डिस्टेंस पे यहाँ पर ये इसका वेव फंक्शन ये है। अगर इतना ही डिस्टेंस में यहाँ पर यहाँ ले लूँ, तो क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर के अकॉर्डिंग यानी वेरी कर रहा है, इसका मतलब ग्राफ थोड़ा सा बाहर की तरफ आएगा। ऐसे तरीके से यहीं पे दिखा दिया, ये ग्राफ भी कुछ ऐसे ही जाएगा और ऐसे जाते जाते इस एक्सिस के यानी पैरेलल होता चला जाएगा। ये भी मैंने अगेन जो है कि यानी क्या 100 के लिए प्लॉट यानी किया हुआ है, ठीक है। बाद में हम देखेंगे जब 2s 3s में बात करेंगे, तो ये इस साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस, ये कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। और अगर ग्राफिकल वे में देखा जाए तो यार तुम खुद बताओ कि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि भैया कि यहाँ पर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू पे है, या इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है दैट इज मैक्सिमम। और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब जो है कि ये दोनों ग्राफ कहीं ना कहीं इनकी ड्रॉबैक तो आ ही रही है। इसलिए इस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए कॉन्सेप्ट लाया गया प्रोबेबिलिटी का। यानी प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली होता क्या, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम। तो होता क्या है, जस्ट थोड़ा सा देख लें कि अगर इसमें ये तो सिंपल से इस तरीके के मैंने ग्राफ दिखा दिए, थोड़ा जरा अंडरस्टैंड लें कि यानी ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ मान के चलो कि ये कोई सेल दिखा रखा है मैंने, इस तरीके से एटम का मैंने साइज दिखा रखा है। यहाँ से आपको किसी डिस्टेंस आर पे यानी किसी डिस्टेंस पे आपने यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालना, तो उतने डिस्टेंस पे हम एक थिन सेल कंसिडर करते हैं। यहाँ से आर डिस्टेंस पे ये मैंने कंसिडर किया, और ये जो सेल है इसकी थिकनेस को मैंने क्या ले लिया, डी आर। तो तुम खुद बताओ जो कि मैथमेटिक्स का दिमाग लगाते हुए बताओ कि इस सेल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा। तो वॉल्यूम इसका सीधे से आ जाएगा, आप या तो इसमें आउटर में से इनर का वॉल्यूम माइनस कर लो। जब आप ये माइनस करोगे तो इस थिन थिकनेस वाले सेल का वॉल्यूम आएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। जो क्लियर, ये कहाँ से निकल के आया, ये सीधे से आया आउटर में से इनर का वॉल्यूम, यानी यहाँ से 4/3 पाई आर प्लस डी आर का क्यूब कर लेना, माइनस 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें जब सब्ट्रैक्शन करोगे तो ये फाइनली आपके पास में आ जाएगा। ये एग्जैक्टली इस यहाँ पर इस बहुत ही फाइनाइट वॉल्यूम है, क्योंकि ध्यान देना ये थिकनेस बहुत कम है। ये यहाँ पर इतने वॉल्यूम में ये इतने वॉल्यूम में आपको इलेक्ट्रॉन की अगर फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी निकाल लो, तो आप इससे और थोड़ा जो है कि छोटा सेल ले लो, और थोड़ा लार्जर जो है कि ले लो। इस तरीके से न्यूक्लियस और इसके बीच में इसका 0 to r के बीच में इंटीग्रेशन करके
टोटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को निकाल सकते हैं या टोटल प्रोबेबिलिटी को निकाल सकते हैं। तो होता है एग्जैक्टली है क्या, सीधा सा ये है। पहले बता देता हूँ कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या चीज़ होती है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ऐसे डेंसिटी आप जानते हैं क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, उसको मास डेंसिटी बोलते हैं। अब यहाँ हम इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी अपॉन वॉल्यूम। मुझे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना, तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम। और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होता है, साई मॉड स्क्वायर। वॉल्यूम क्या निकाल लिया, दैट इज आर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। ये जो प्रोबेबिलिटी आया है इसको मैं डीपी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही थिन शेल के अंदर आया है। और अगर इस डीपी को मैं यहाँ इंटीग्रेशन कर दूँ 0 एंड आर के बीच में, तो मुझे न्यूक्लियस के चारों तरफ इस इंटायर वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। ओके, अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई इस तरीके से अगर ग्राफिकली इसको प्लॉट किया जाए, यानी दैट इज ए डीपी, या सीधे यानी प्रोबेबिलिटी सीधा लिख दो आप, साई स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर के अगेंस्ट। तो ध्यान देना यहाँ पे एग्जैक्टली, अब ये इंटरेस्टिंग होता है ग्राफ। हर कोई एक्सप्लेन कर देता है कि ग्राफ ऐसे जाएगा, अरे क्यों जाएगा उसका इंटरप्रिटेशन भी तो होना चाहिए कि एग्जैक्टली होता है क्यों ऐसा। तो देखो सीधे से न्यूक्लियस से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है, तो डिस्टेंस बढ़ने पे आप केवल इतने बात पे ध्यान दो, इस फैक्टर पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। डी आर तो बहुत छोटा एलिमेंट है, 4 पाई यानी कांस्टेंट है आपके पास में चीज़, ठीक है। और साथ में अभी अभी मैंने ग्राफ आपको बताया था कि एग्जैक्टली साई स्क्वायर और आर, साई स्क्वायर एंड आर का जो ग्राफ होता है, साई स्क्वायर एंड आर का ग्राफ अरे कैसे जाता है भाई, ये ऐसे जाता है एक्सपोनेंशियली ऐसे। फर्ज करो कि अगर आप केवल जो है कि 4 पाई आर स्क्वायर यानी सिंपल से आर स्क्वायर की बात करो, आर स्क्वायर एंड आर का अगर ग्राफ प्लॉट करोगे तो ग्राफ कैसे जाएगा, डेफिनेटली ये ग्राफ ऐसे जाएगा कुछ। ये ग्राफ कैसे जाएगा, ये ग्राफ इस तरीके से, अरे इस तरीके से यानी अपवर्ड जाएगा, यानी पैराबोलिकली ऊपर। एक चीज आप देख पा रहे हैं यार कि जब आप इसमें ग्राफ खींच रहे हैं तो हमें एक बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि एज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इज इंक्रीजिंग, ये साई वैल्यू तो डिक्रीज कर रहा है, बट ये वाला जो फैक्टर है ये फैक्टर इंक्रीज कर रहा है। अब एक डिक्रीज कर रहा है, दूसरा इंक्रीज कर रहा है, तो ग्राफ कैसे आएगा, इसका तो दोनों ग्राफ को आपको कंबाइन करना पड़ेगा। एक ग्राफ ये लिया, एक ग्राफ मैंने ऐसे लिया, दोनों ग्राफ को यानी कंबाइंड करूँगा, और कंबाइंड करने के बाद में जो ग्राफ मुझे मिलेगा वो ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। ग्राफ विल कम आउट टू बी लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। यहाँ पर जो कि मैक्सिमम आएगा, ध्यान देना ये, यानी यहाँ पर ये मैक्सिमम पॉइंट पे जाएगा, फिर एक ग्राफ डाउनवर्ड ट्रेंड फॉलो करेगा। शुरू में यहाँ से लेके यानी इतनी डिस्टेंस तक जो फैक्टर डोमिनेटिंग है, और वो डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा है, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इज इंक्रीजिंग फास्टर देन साई स्क्वायर इज डिक्रीजिंग। बट इस पॉइंट के जस्ट आफ्टर क्या होता है कि आर स्क्वायर में जो इंक्रीज होती है, ये इंक्रीज मैंने ये लंबे एरो से दिखा दिया। इस पॉइंट के बियॉन्ड क्या होता है कि आर स्क्वायर में जो इंक्रीज हो रहा है दैट इज मोर देन कॉम्पनसेटेड बाय द डिक्रीज इन द स्क्वायर ऑफ द साइड। इसलिए ये ग्राफ कुछ ऐसे आ जाता है। और एक ग्राफ ध्यान देना कि सिमेट्रिकल नहीं होता है। इस साल आईआईटी में मैक्सवेलियन पे क्वेश्चन आ चुका है, ये सिमेट्रिकल नहीं होता है, अनसिमेट्रिकल होता है। और इस ग्राफ के नीचे ये जितना भी एरिया होता है, ये सारा एरिया क्या रिप्रेजेंटेशन करेगा, इट विल रिप्रेजेंट टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स।
ये ग्राफ आप देख पा रहे हैं। अब ये ग्राफ सबसे इम्पोर्टेंट है, मोस्ट एक्सेप्टेबल ग्राफ है, क्योंकि अगर डिस्टेंस r की वैल्यू 0 है, 0 मतलब न्यूक्लियस, आपको पता है कि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, तो दिस इज मोस्ट ऑथेंटिक ग्राफ। साई वर्सेस आर इतना ऑथेंटिक नहीं है, साई स्क्वायर वर्सेस आर भी ऑथेंटिक नहीं है। ये मोस्ट ऑथेंटिक क्यों हो गया? क्योंकि यह साफ साफ इम्प्लाई कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस में 0 है। साथ में ये भी बता रहा है कि किसी डिस्टेंस पे जाके इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग की जो प्रोबेबिलिटी है ये मैक्सिमम हो चुकी है। उसके बाद फिर ये डिक्रीज जो है कि होना स्टार्ट हो गया है। इज इट क्लियर? यहीं से ये चीज़ भी कंक्लूड होके आती है कि अगर मान के चल कि यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0, इसके बाद ये धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज होते होते यहाँ पर किसी एक डिस्टेंस पे आके ये डेंसिटी आप देख पा रहे हैं कि मैक्सिमम हो चुकी है। ठीक है, स्पेरिकल सिमेट्री वाला होता है, मैं शुरू में ही आपको बता चुका हूँ, इतने डिस्टेंस पे आके ये डेंसिटी मैक्सिमम हो गया, उसके बाद ये डेंसिटी डिक्रीज करना स्टार्ट हो गया है। इस तरीके से आप छोटे छोटे तरीके से डॉट को बना दीजिए डिफ्यूज स्कैटर्ड फॉर्म में। तो हम लोग जो है कि न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पर मतलब उस ऑर्बिटल को डिसाइड करते हैं। नॉर्मली जहां 90 to 95% प्रोबेबिलिटी होती है, और वो रीजन हो जाता है हमारे पास में ये इस तरीके से, ये स्फेरिकल शेप कहा जाता है। और ये जो डिस्टेंस पाई गई है, ये डिस्टेंस पाई गई है r0। इसको निकालने का भी सिंपल सा मेथड है। ये साई का इक्वेशन आपके पास में दिया गया है, इसका आप स्क्वायर जो है कि ले लें। स्क्वायर करने के बाद इसको 4 पाई आर स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई किया, डी आर को मैंने यूनिट लेंथ मान लिया, इज इक्वल टू मैंने क्या ले लिया यहाँ पे पी ले लिया प्रोबेबिलिटी, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेना डी आर के जो के रिस्पेक्ट में, और फिर जो कि मैक्सिमा कंडीशन को लगाते हुए आप इस डेटा को निकालेंगे, तो आर नॉट की वैल्यू आपके पास में ए नॉट के इक्वल आएगा, जो कि 0.527 एंगस्ट्रॉम के इक्वल आ जाएगी, जिसको कि आप क्या कहते हैं, बोर रेडियस। इस तरीके से हर वेव इक्वेशन की मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन किया जाता है। इस इक्वेशन की हेल्प से मैंने क्या क्या फाइंड आउट किया है। इस इक्वेशन की हेल्प से एक तो मुझे जानकारी मिला कि यहाँ पर कोई नोड नहीं है। देखो यहाँ पर ये नोड नहीं होता है, ये इन्फिनिटी पे जाके एक्स एक्सिस को यानी कट करेगा, बाउंड्री कंडीशन पे कभी नोड नहीं होता है। यहाँ और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी ये ग्राफ इस एक्सिस को टच नहीं कर रहा है। अगर ये टच नहीं कर रहा तो इसका मतलब इसमें कोई तरीके का रेडियल नोड नहीं है, और वो रेडियल नोड के फॉर्मूले से भी जस्टिफाई हो जाता है। रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू n माइनस एल माइनस 1। एन का वैल्यू 1s के लिए 1, एल की वैल्यू 0 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से भी जस्टिफाई हो गया। अरे ये फॉर्मूले पहले नहीं आए, ये फॉर्मूले इन्हीं ग्राफ और इन्हीं इक्वेशन के थ्रू जो है कि निकाले गए हैं। पढ़ाया कैसे जाता है, पहले नोड पढ़ा दिए जाते हैं और बाद में इन ग्राफ की इंटरप्रिटेशन हो पाई तो ठीक है, नहीं हो पाई तो छोड़ दिया जाता है। तो एग्जैक्टली ये जितने भी चीज़ें हैं, ये एक्सप्रेशन ये इन्हीं ग्राफ के इंटरप्रिटेशन से आई है। तो एक तो हो गया कि भाई कि यहाँ नोड की इंटरप्रिटेशन होगी कि इसमें रेडियल नोड जो है कि टोटल क्या है। दूसरा, मैंने इस इक्वेशन के थ्रू 3 तरीके के ग्राफ भी निकाल दिए। ये ग्राफ ऐसे शेप का क्यों आता है, इसका भी मैंने एक्सप्लेनेशन जो है कि ले लिया। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो है कि कितने डिस्टेंस पे आएगी वो मैंने बता दिया कि डिफ्रेंशिएट करके जो है कि निकाला जा सकता है, जो मैक्सिमा कंडीशन को जो है कि लगाते हुए। बिल्कुल यही प्रोसीजर आपको हर वेव इक्वेशन पे करना पड़ता है। इज इट क्लियर? तो मैंने एक सिंपलेस्ट मैथमेटिकल इक्वेशन 1s ऑर्बिटल पे इस चीज़ को एक्सप्लेन किया। आई होप दैट यू विल इम्प्लीमेंट द सेम कॉन्सेप्ट फॉर rest other atomic orbital wave equations, and accordingly whatever is being asked in the examination you will be able to find the answer of the questions.
नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स को डील करेंगे, जिसमें एंगुलर वेव फंक्शन भी इंक्लूड हो जाएगा। एंगुलर वेव फंक्शन के थ्रू भी हम ऑर्बिटल को कैसे डिटरमाइन जो कि ले पाते हैं। एक रेस्ट्रिक्शन है, एंगुलर वेव फंक्शन से हम कभी भी साइज डिसाइड नहीं कर पाते हैं। हमें ये नहीं पता चलता है कि अगर वो ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल है तो 2p है, 3p है, 4p है। ये 2, 3, 4 ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये केवल और केवल रेडियल पार्ट से ही मालूम चल पाते हैं। In the next class, I'll be just dealing with the various kinds of the questions based on the angular wave functions and interrelating them with the angular wave functions, and accordingly dealing with the whole concept. Okay, what other various kinds of the questions could be asked based on this equation. Thank you very much. Wish you all the best and have a good time. Good night.